मैसेज कर दिया था कि भाई कौन से सम का फॉर्मेट बना के आपको आना है। अच्छा, हैव यू मेड द फॉर्मेट और जस्ट द मैसेज रेड द वे यू डू इट टू मी, इग्नोर्ड एंड देन केम टू द क्लास? वेरी गुड, इग्नोर्ड, राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, पेज नंबर 87 पर चलो। पेज नंबर 87, बेटा बात तो नहीं। टेक अप योर पेंसिल। Now trust me, this sum number 18 I am just doing for one adjustment. Rest all adjustments are very easy for you, but still I'll be doing the entire sum for you people. Take up your pencil. Sant and Mahant are the partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. From the trial balance on 31/3/2017 and adjustment, prepare final accounts of the partnership firm. Now बेटा कुछ स्टूडेंट्स के बहुत बार ऐसे मेरे को व्हाट्सएप आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि सर करंट अकाउंट कब बनाने का, कैपिटल अकाउंट कब बनाने का। आई रिवाइज दैट अगेन कि कब बनाने का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। હવે આ સમ મે ઉપાડ્યો સંત અને મહંત વાળો, એમાં कैपिटल अकाउंट આપેલું છે? Is there any current account given in the sum? No. So अकेला कैपिटल दिया है तो क्या बनाने का? कैपिटल अकाउंट। पर कैपिटल ની જોડે જોડે if they have given information of current account, તો what will make? हम આટલો તો શું મોટો પહાડો સર, lots of confusion. कंफ्यूजन अब है? कब कौन सा अकाउंट बनाने का पता चला? अच्छा, અહીંયા જો ड्राइंग्स ऑफ संत महंत, where it will go? Partners capital. Plant and machine. Plant and machine. Addition to plant and machine. Furniture fittings. Data. Advertisement. Cash and bank balance. Purchase. Productive wages. Electricity expense. Factory. Any factory related expense will go to. Proud of you. Rent and tax office. Rent and tax factory. Technical expense. Opening stock. Factory expense. Then office salary. Discount allowed. Carriage inward. Bad debts. ऑफिस एक्सपेंस। क्रेडिट साइड चले जाते हैं। कैपिटल ऑफ संत एंड महंत, पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिटर्स, देन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। स्टार करो, वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन एडजस्टमेंट। स्टार सेल्स, ट्रेडिंग, देन 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, लायबिलिटी, कमीशन, पीएनएल। जरा चेक करो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है, एंड अगर मैच हो रहा है तो हम टैली कर लेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स में पहला वाला तो क्लोजिंग स्टॉक तो टिक नहीं कर पाएंगे। सेकंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, तो उसे टिक करो, प्लांट एंड मशीन को। देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स को टिक करो, डेटर्स को टिक करो, बैड डेट्स को टिक करो, कैपिटल अकाउंट ने टिक, then productive wages per tick, advertisement expense per tick, office salary per tick, and technical expense per tick. Okay, so तुम लोगों ने तो फॉर्मेट बना दिया है, मुझे 5 मिनट दे दो, and if you want to start the posting you can do that. I'll not stop you. First is a trading account of Sant and Mahant for the year ending on 31/3/17. Debit, particulars, amount। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, उसमें ज्यादा आइटमें हैं। Then particulars, amount, क्रेडिट। इतने सी जगह में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दूंगा।
Partners capital account debit, date, particulars, Sant Mahant, date, particulars, Sant Mahant. Then we need to make profit and loss account of Sant and Mahant. Then the balance sheet I'll draw. Balance sheet as on 31/3/17. Liabilities, that's credit and amount. Asset, that's debit and amount. एंड हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, एकदम छोटू सा. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. But my format is ready. Shall I start? Yes. You are also ready? Yes. Now drawings of Sant and Mahant will go to partners capital 31/3/17. On the debit side, drawings 7,000, 3,000. Plant and machines. Plant and machines 33,300 प्लस एडिशन उसके नीचे ही दिया है 1716 को एडिशन हुआ है 24,000 का. सो टोटल कितना बैठता है? 57,300. लीव 4 lines. Leave 4 lines, we have lots of adjustment to it. Then furniture 2560 in the inner column. Debtors 64940. Then advertisement expense. Advertisement expense we have 13248. Cash and bank balance. Cash and bank balance. How much is the amount? 8496. Then purchase में कोई adjustment नहीं है, right? We write purchases 181,168. Then productive wages 45272 in the inner column. Then electricity expense of factory. Electricity expense of factory 4296. Rent and tax office. So that will go to P&L account. Rent and tax office 872. Then rent and tax for factory. Beta, any adjustment to that? No. 9384. अच्छा, where did I bifurcate to you technical expense? P&L लिखा शायद से, right? फैक्ट्री में लिखो बेटा, क्योंकि
फैक्ट्री में कुछ टेक्निकल लोचे हो सकते हैं ना, सो पीएनएल में मत लिखो, टेक इट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ટેકનિકલ એક્સપેન્સ will be incurred in factory, કેમ કે મશીન તઈ બંધ પડશે એટલે ત્યાં લોચા આવશે એવું આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. Then we have opening stock. Opening stock 33696. Technical expense में adjustment है, that's why we have wrote it in the inner column. Then we have factory expense. How much do we have? Factory expense 1780. Then we have office salary. How much is the amount of office salary? 8780. Adjustment है? Okay, I'm sorry. 8780. Then the next is discount allowed. Discount allowed. But how much is the amount of discount allowed? 4800. Then we have carriage inward, that will also go to trading, 1700. Then beta, do we have adjustment of bad debts? Now if we have adjustment of bad debts, what are we supposed to do? Can I say we need to make a table of TAT? So to bad debt as per trial balance, bad debt as per adjustment, BDR as per adjustment, and BDR as per trial balance. Now bad debts कितने हैं अपने? 836. दूसरा जब आएगा तब लिखेंगे. અને ઓફિસ એક્સપેન્સ માં તો કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી. ઓફિસ એક્સપેન્सेस 2072. But I'm waiting. Debit side सारा निपटा दिया मैंने. I'm waiting. Debit side सारा निपटा दिया. Please checks करो. Capital account of better now Sant and Mahant. So that will go to partners capital. By opening balance, Sant is 80,000 and Mahant is 40,000. Creditors. Can I say no adjustment in creditors? 48,000. बेटा सेल वाले में तो as I told you we have मस्त वाला एक hidden adjustment जो बाद में करेंगे. Then we have sales 2,68,000 is my amount of sale. 5% loan from ज्ञानी बेटा ज्ञानी लोग ही लोन दे पाएंगे. कमीशन कहां जाएगा? कमीशन कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड. सो बाय कमीशन हाउ मच इज द अमाउंट? 800. Commission will go on P&L credit side 800. But I am waiting. I would be giving you now 10 minutes
There is a second adjustment saying we need to calculate the depreciation on plant and machine and furniture. Do you see that? So from that second adjustment, you don't do this plant and machine wala. You do it for rest. All you are able to do it. Even I want you complete this hidden adjustment of Gyani also. Then what is remaining is plant and machine adjustment. That I'll do it. And once you complete all, I'll also do it all. But એ તમારે ખાલી બેસીને જોવાનું કે તમે બરાબર ઇફેક્ટ આપી છે કે નથી આપી. ચલો આટલા સમ પતાયા પછી હું તમારાથી આટલું એક્સપેક્ટ કરું છું કે આટલું તમારાથી થઈ જવું જોઈએ. અને મશીન વાળો જે એડજસ્ટમેન્ટ છે આપણે રેડ પેન થી કરીશું. મજા આવશે. Beta, the adjustment are so easy that it does not require your internal consultation also. At least do it on your own, fatafat. But are you able to do any of the adjustment? Any? Yes. नरेंद्र, बेटा कितने एडजस्टमेंट कर पाया? अभी तो यही कर रहा है. बहुत बढ़िया. प्रथम एक हो गया. प्रथम हाँ एक ही कर दिया है. बहुत हो गया सर. एक से तो अपना अभी कोटा खत्म है सर. सीएनजी ओवर. रोहित तुम बस इसी कॉपी करने में खत्म कर दो बातें.
सोहेल भाई हो गए सारे? बहुत बढ़िया। वीरू कितना बतिया? बद्दा। फिजा बैटर्स पे रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी पुरुष ने सब कुछ कर लिया है। अली भाई लास्ट बेटा, खुद भी करो और पूरी बेंच को भी करवाओ। हुसैन भाई फिर स्टार्ट करूं? तुम लोगों ने जो एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट दे दिए हैं, मैं वो स्टार्ट करूं? भार्गव करो सर, तो हम कॉपी करूं। पहला क्या दिया है? देयर इज अ स्टॉक ऑफ रुपीज हाउ मच? देयर इज अ स्टॉक ऑफ 85,500। नाउ ये किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रथम कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कहां लिखो? कौन से साइड? क्या? हर्षित जल्दी ठीक से आंसर बताओ उसको, नहीं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा। हर्षित जल्दी बोल कहां जाएगा। डेबिट में बोल ताकि वो भी डेबिट बोले। हाँ सुन ले बेटा, सुन ले। क्रेडिट में जाएगा, सुन ले। बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच इज द अमाउंट? 85,500। द सेकंड इफेक्ट, asset. Closing stock, the second effect will be going on to the asset side, 85,500. सेकेंड एडजस्टमेंट में वो प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन अभी हमने पेंडिंग रखा है, लेकिन फर्नीचर पर कितना है? 7.5%। फजल डेप्रिसिएशन की इफेक्ट? अरे क्या करूं, इफेक्ट बता यार, अमाउंट तो मैं ढूंढ लूंगा। इफेक्ट क्या होगी डेप्रिसिएशन की? बेटा बोर्ड में इस बैच में से इतनी विकेट्स गिरने वाली है ना, जितनी तो दो टीम मिला के भी नहीं गिरेंगी उतनी गिरेगी यहां से। हाँ बैलेंस शीट में कहा? असेट में कहा? फर्नीचर में से माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। लिख दिया जाए डेप्रिसिएशन एट 7.5%, 192, 2368। फजल ने तो फसल उगा दी है। टू डेप्रिसिएशन विल कम ऑन द डेबिट साइड। हाँ डेबिट साइड आएगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 192। थर्ड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू अवर बीडीआर कुछ बनाना है। कितना है? सो वो बीडीआर हम क्या करेंगे? रेज योर हैंड। फिजा बीडीआर का क्या करेंगे? डेटर में से माइनस कर दो। बहुत बढ़िया। और उसकी दूसरी इफेक्ट पीएनएल के कहना से ये टाट के टेबल में जाएगा, सो माइनस करो। चलो लेस बीडीआर एज पर एडजस्टमेंट इज 2000, तो 62940 अने ये 2000 यहां चला जाएगा। 2836। बेटा नेक्स्ट वाला कौन सा एडजस्टमेंट है?
Interest payable on. Interest payable on. रजिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कहां जाता था? P&L अप्रोप्रिएशन में कहां? डेबिट साइड। और दूसरी इफेक्ट बेटा ये कौन मटका लेके निकला है पानी भरने? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल के। अच्छा, यहां पर अमाउंट कितनी आएगी? कितना रेट दिया है? 6%। तो 8,000 का 6% अगर मैं निकालूं 4800 और 40,000 का 6% is 20। सो यहां लिखा जाए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 ने बे 400 અને બીજી ઇફેક્ટ જશે P&L અપ્રોપ્રિએશન માં ડેબિટ સાઇડ. So to interest on capital संत અને महंत. सम देखो कैसा है, संत महंत और कर रहे हैं सारे घंट सम कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई में कैसे नाम है और लोग कर कौन रहे हैं। लास्ट वाला जरा देखो, लास्ट वाला, ये सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग है। 4 खर्चे कैसे हैं? कैसे आवा एडजस्टमेंट आ जाए तो लाइफ बन जाए। जो फाइनल अकाउंट्स 11 में से 3-4 आ जाए, पास तो हम हो ही जाएंगे सर। पास का तो कोई हमको टेंशन नहीं है, बाजू वाले में से फुल कॉपी मारने की है। कौन कौन सी आइटम में आउटस्टैंडिंग है जरा बताओ। पहला प्रोडक्टिव वेजेस है। हाउ मच इज द अमाउंट? 784। सो 4-5 में से ये ऐड करो, 4-6-0-5-6। देन टेक्निकल एक्सपेंस में 720। एडवर्टीजमेंट में कितना है? आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट इज 312-13-560। और ऑफिस सैलरी में आउटस्टैंडिंग कितना? 9180। बेटा ये जितने भी आउटस्टैंडिंग है उनको क्या करेंगे, कहां के लिखेंगे? लिखा जाए धीरे। ओए कोई बहरा नहीं है इधर, तेरे को छोड़ के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा मैं हेडिंग लिख दूंगा एंड देन 1 by 1। प्रोडक्टिव वेजेस 784। टेक्निकल एक्सपेंस, बेटा टेक्निकल एक्सपेंस 320। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 312 અને ऑफिस सैलरी 400। बेटा एनीबॉडी कंप्लीटेड विद दिस हिडन एडजस्टमेंट ऑफ ज्ञानी लोन? एनीबॉडी? गिव द हेडिंग नाउ। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of interest on Gyani's loan. Working note number 1, calculation of interest on Gyani's loan. Now ज्ञानी ने लोन कौन सी डेट पे दी है जरा चेक करो। 1/10/2016। 1/10/2016। कितने अमाउंट की लोन दी है? कितने अमाउंट की लोन दी है? एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? नाउ 1/10 को अगर दी है तो लिखा जाए वहां पर 1/10/16 से 31/3/17। दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. So interest कैसे आएगा? 10,000 into 5%. 10,000 into 5% into 6/12 into 6/12 कितना कितना कितना? 6/12 सॉरी नहीं,
5% है तो 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12. 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12. 250. इंटरेस्ट ऑन लोन कुठे पीएनएल में डेबिट साइड लिखा जाए 2. इंटरेस्ट ऑन लोन 250. अरे बेटा दूसरी इफेक्ट कहां जानी है? दूसरी इफेक्ट कहां जानी है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 अंदर लिख दिए थे. 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 250. So 10250. It's 1025. पक्का पक्का पक्का. अब बेटा प्लांट एंड मशीन के एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. टेक अप योर रेड पेन. प्लांट एंड मशीन्स के एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं. टेक अप योर रेड पेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो हिडन एडजस्टमेंट पहले करते हैं. चलो सेल ऑफ मशीन वहां पर लिखा है. देखो जरा सेल ऑफ मशीन. कितने में मशीन बेचा? कितने में मशीन बेचा है? 4800. जबकि उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है जरा चेक करो. 6900. एंड व्हेन डिड आई सेल? जरा चेक करो. व्हेन डिड आई सेल? 14 को. मतलब मेरा जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तभी मैंने वो बेच दिया. अब फिर से जरा पढ़ो. उसकी मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू मैंने उसे बेचा कितने में? 4800 में. 6900 नी वस्तु 4800 में बेची. प्रॉफिट करा के लॉस. कितने का लॉस? तो पहली इफेक्ट जरा ध्यान दो. पहली इफेक्ट 2 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2100 पीएनएल के डेबिट साइड. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन पीएनएल के डेबिट साइड. एंड तुम देखो मशीन सेल ऑफ कर रहे हो. सेल ऑफ तो यहां से क्या करूं मैं? मशीन को सेलिंग इट ऑफ. तो यहां से क्या करने का? लेकिन डाउट 6900 माइनस करूं कि 4800 माइनस करूं? 6900 के 4800 कितने दिन बोलते? 6900 4800. सर डोंट नो. आई डोंट नो. बेटा इसको याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी तुमको. ये सारी चीजें तुम अभी ये प्लांट मशीन ये सब तुम किस में बना रहे हो? बुक में. किस में बना रहे हो? सो बुक में से कौन सी वैल्यू माइनस होए? बुक वैल्यू. बुक में से माइनस क्या होगा? So we need to understand कि when we are writing it in a book तो यहाँ से क्या माइनस होगा? Now book value means the original value of the machine जो थी और हमने उसको 4800 में जो बेची है that 4800 is a selling price. But what was its value? Book value. तो उसको यहाँ से book value को मुझे माइनस करना है जो उसकी वैल्यू थी in my books. Now in the books का मतलब in my balance sheet गधो. तो सेल ऑफ मशीन 6900 50400. बेटा वन मोर एडजस्टमेंट इज पेंडिंग. किसका? सो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. पहले इतना समझ में आया. अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था सर? पहले 4800 का ही बाजू गए हो. Where is that 4800 sir? बेटा वो कहीं नहीं जाएगा. 4800 की कोई इफेक्ट नहीं आएगी. एक यहाँ 6900 અહીંયા થી માઈનસ કર્યો અને 2100 અહીંયા લખ્યું
सो 4800 की हमने नेट इफेक्ट दे दी, वो कहीं जाएगा, इसलिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि 4800 नहीं कोई इफेक्ट हाउस है, 4800 नहीं इफेक्ट हाउस है। पक्की बात, पक्की बात। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। कैलकुलेशन ऑफ depreciation on machines. Working note number 2, calculation of depreciation on machines. Calculation of depreciation on machines. अब यहां ध्यान, यहां क्या से मेरे पास मशीन्स थे कितने जरा समझो। क्या से ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास, मतलब 1/4/16 का 33,300। नवे मशीन कब लिए, नवे। सो एडिशन हुआ मशीन्स में 1716 को, कितने का एडिशन हुआ, 24,000 का एडिशन हुआ। अब उसमें से हम कुछ मशीन बेच भी रहे हैं, लेकिन डेट देखो कौन सी डेट पर बेचा, कब बेचा यार, डेट देखो ना यार, 1416। तो कहना से ओपनिंग माथी माइनस करो कि एडिशन माथी, ओपनिंग के एडिशन, कॉमन सेंस। तो यहां पर उसी दिन को सेल किया तो 6900 माइनस कर दो, 26, इट्स 26400। कहना से ये वाली मशीन मेरे साथ पहले दिन से है 14, तो कितना बरस नो डेप्रिसिएशन, अखा बरस। व्हाट्स द रेट, व्हाट्स द रेट। सो डेप्रिसिएशन एट 15% आनी अमाउंट के लिए हाउस है 39। बहुत बढ़िया। नहीं, दूसरी जो 24,000 की मशीन आई वो कब आई, देखो 24,000 की मशीन आई वो कब आई, तो 17 से टाइम गिनना शुरू करो, कितना आएगा, 17 से शुरू करो, 9 मंथ्स। तो 24,000 ना 15% फॉर 9 मंथ्स, 20। So 3960 plus 2700 is 660। હું વેઇટ કરું છું, આ વર્કિંગ પતાવી દો ચલો। I am waiting, please complete this working, all of you। Any doubt in the working? पक्का पक्का। ओपनिंग बैलेंस में से वो माइनस करे ने एडिशन पे 9 मंथ्स का हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला है, कोई तकलीफ आला है? अब बेटा ये डेप्रिसिएशन कहाँ लेके जाऊं वो तो बता दो यार। क्या करूं, क्या करूं? मशीन वाली माइनस डेप्रिसिएशन 660 माइनस करके व्हाट्स द अमाउंट, कितना, 43740। अरे बेटा उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? So to depreciation on machine 660, depreciation on machine is 660।
बेटा आर वी रेडी टू क्लोज द सम नाउ? बेटा आर वी रेडी टू क्लोज द सम नाउ? लेट्स स्टार्ट द टोटलिंग पार्ट. શું લાગે છે બેટા, ક્રેડિટ સાઈડ કે ડેબિટ સાઈડ નું ટોટલ વધારે લાગે છે? ક્રેડિટ સાઈડ. તો જરા ટોટલ बताओ. कितना? 35 200 00 sorry 35 00 એમાંથી માઈનસ કરા 74 पीछे आंसर क्या कितना है? 68. टेंशन ना लो, चलो अभी करते रहो, अल्टीमेटली टैली कर देंगे अपने. ग्रॉस प्रॉफिट 74700. सो ग्रॉस प्रॉफिट हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे 74700. बेटा इसमें क्या लग रहा है, डेबिट क्रेडिट किसका टोटल ज्यादा लग रहा है? इसमें बेटा क्या लग रहा है, डेबिट क्रेडिट कई बाजू નું ટોટલ વધારે લાગે છે? क्रेडिट साइड. हाँ तो जरा टोटल बताओ. 75500 75500. उसमें से डेबिट के सारे आइटम माइनस करो. 32978. ये आया मेरा नेट प्रॉफिट. बेटा सीधा लिख लेना, कैलकुलेट करके जरा भी चेक मत करना कैसा आ रहा है कि नहीं. ऐसा अपने को चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये तो घरे जईने गोदो पड़े तो जोवानो. नेट प्रॉफिट पिछू से टैली हो रहा है कि वो गलत जा रहा है? देखो तो वो राइट जा रहा है. हाँ तो टेंशन नहीं है, बराबर जा रहे हैं अपने. सो यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिख देंगे नेट प्रॉफिट 32978. बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है 32978. एमाथी आप अन्य माइनस कर दो 25778. दिस इज माय डिविजिबल प्रॉफिट. जो संत और महंत में रीड द फर्स्ट लाइन. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2. It will be distributed in the ratio 3:2. हाँ तो राउंड ऑफ करेंगे ना, उसमें घबरा क्या रहे हो. 15 पॉइंट कितना आ रहा है? 15466. तो यहाँ 67 ले लो. 15467 અને ડિફરન્સ લઈ લો. કેટલું આવે છે? 25778 में से ये माइनस कर दो. 10311. This is our divisible profit. હવે સમજો ચાલુ એક્ઝામ માં આવો પોઈન્ટ માં આન્સર આવે એટલે સૌથી પહેલા આપને કો क्या लगे કે કઈ તો મિસ્ટેક કરી છે, પણ ટેન્શન નહીં, તમારે ભરોસો રાખવાનો બાજુવાળા પર. બાજુવાળો પછી જે કરે આપણે કરી લેવાનું. By divisible profit 15467 અને 10311. बेटा कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा लग रहा है. कितना आ रहा है?
100267 અને મહંતનું 52711. 100267 and 52711. એમાંથી 7000 માઈનસ કર દો. 93267. 93267 અને 3000 માઈનસ કરો. 49711. This is my closing balance. This is my closing balance. जो मैं लायबिलिटीज में लिख दूंगा, कैपिटल ऑफ संत एंड महंत 93267 49711. And the beta balance sheet is getting tallied at 203 044. 203 044. Mission impossible. Mission impossible. 203 044. But I am not asking you to do this sum repeat, huh? It's very easy. Only for one adjustment, I don't want you to do the sum again. It's better. Which was the last illustration we did? 3. Illustration 3 is done? Yes. Copied na properly? Yes. Because उसमें ऐसे 2-3 adjustment थे जो तुमको डाउट मेरे को पूछने के थे. नहीं आए? सुकोचो? ઇલાસ્ટ્રેશન હે સર. વાંધો નહીં, આજે બેટા ઇલાસ્ટ્રેશન 4 કરો હોમવર્કમાં. અને થઈ શકે તો થોડી ઈમાનદારી રાખજો. બાકી તો કોઈ ટેન્શન નહીં સર. ઇલાસ્ટ્રેશનમાં એટલે મને કોઈની જરૂર નથી. મને ખાલી સોલ્યુશનની જ જરૂર છે.